Hello everyone. I am making this video for opening revision. जो लोग e4 e5 opening खेलते हैं, if you are playing with black pieces and your opening choice is e5 against e4, so I am going to make a first four part of this variation. E4, e5, knight on f3, knight on c6. White is playing bishop c4, and then he can play bishop on c5. You know this is the main line of opening, and after this white can play pawn on c3 and he can play knight on f6. So after pawn c3, knight on f6, white has 2 3 options here, white can play d3, white can go for d4 and castle. So first four variation, what I'm like talking about, first four variation, I'll cover the d4 main setup. टॉप लेवल पे ज़्यादातर d3 ही खेला जाता है, ठीक है। लेकिन पहले हम d4 के 4 सेटअप देखेंगे ब्लैक साइड से। इफ यू आर प्लेइंग विद ब्लैक पीसेस तो आपके हाथ में नहीं है, लाइक यू विल नॉट डिसाइड व्हाट व्हाइट इज गोइंग टू प्ले। सो d4, then here you can capture this is the first variation. When you capture, white can play e5. So this is the first variation. तो इस वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे e5. टेक इट एज अ रिवीजन, ओके, बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन माय लाइव क्लासेस. So c into d4, bishop b4 check, and then bishop d2. Okay, bishop d2 is like stopping the check. This is the second variation. Third one is knight c3, and in knight c3 there are two variations. So total four variations. So first we'll cover this where e into d4, and then black is playing e5. Okay. So whenever white is playing e5, not black. So e5, black to play in this position. So I'll suggest you here go for d5. Okay, whenever you are playing this setup, like white played pawn on d4, then you capture the pawn, and white played pawn e5. Here black can play pawn on d5. Okay, so now you can see white has two options. White can capture the knight or white can save bishop. Okay, if white, the main line is bishop on b5. Okay, and nowadays like there are some player who is using like bishop on e2 also. Okay, bishop e2 is also popular here. Bishop b5 is the main line and most playable move here, like bishop b5. But just example, your opponent don't know these things and he simply capture the knight. Okay, you capture the knight, then you can capture bishop. Remember this, in this setup, white king and black king, both king in center only. Okay, white king on e1, black king on e1, pawn on c3. बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें व्हाइट का किंग कैसल रहता है और सिमिलर पोजीशन आता है, उसमें आपको केयरफुल रहना है। इसमें व्हाइट का किंग कैसल नहीं है। नाउ आफ्टर कैप्चरिंग द c4 bishop, white can play f into g7, and then he can play rook on g8. Obvious. Here black can go for two options. Sorry, white can go for two options. White can go for castle or white can capture the pawn. Okay. If white will castle, okay, then you can play here 2 3 move. Like first your idea is to develop the bishop. You can play bishop on e6 because rook e1 is coming. If suppose white is playing rook e1, then you can just capture the g7 pawn. Okay, and next one, like white can go for c into d4 in the position, then we can play knight into d4. If we play knight into d4, then we can play queen into d4. Okay, there is no any problem with this variation. Don't think कि यहाँ पे कुछ मतलब पोजीशन और पॉन थोड़े मिसप्लेस्ड हो गए हैं। दिस इज कम्प्लीटली फाइन फॉर ब्लैक. ब्लैक इज बेटर इन दिस पोजीशन विथ टू बिशप. क्वीन से कैप्चर करना फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट मूव में आप इस साइड कैसल कर लीजिए, रुक सेंटर में है, तो ये एक ऑप्शन है। तो और क्या हो जाता है, कभी कभी प्लेयर क्या करते हैं, आफ्टर कैप्चरिंग द g7 pawn, rook g8, they are trying to protect the g7 pawn, which is useless. You can play queen f6, so you are attacking on bishop. तो यहाँ पे वो बिशप g5 अगर खेलेंगे तो क्वीन इंटू g7, फाइन। अब यहाँ पे अगर कैसल होके रुक e1 का प्लान बनेगा, यू कैन जस्ट सी, यहाँ पे अगर आप बिशप e6 कुछ भी खेलेंगे वो बेटर है। पॉइंट इज इफ यू प्ले बिशप ऑन e6, दिस बिशप इज स्टिल ब्लॉकिंग योर क्वीन साइड कैसलिंग। ठीक है, तो बिशप e6 जो खेलते हैं ये बैड मूव नहीं है। यू कैन प्ले बिशप e6 ऑल्सो। व्हाइट विल प्ले g3 बिकॉज अगर बिशप मूव हुआ तो चेकमेट हो जाएगा, तो वो g3 खेलना उसका फोर्स है।
यहाँ पे बहुत से लोग सोच सकते हैं कि वाई नॉट प्ले f6, बिशप विल मूव, देन आई कैन डू चेकमेट। तो यहाँ पे क्या होता है, c इंटू d4। अगर आप बिशप कैप्चर करेंगे आपका भी बिशप जाएगा, और अगर आप अपना बिशप सेव करने जाते हैं बिशप ऑन e7, देन योर अपोनेंट कैन प्ले नाइट ऑफ c3, अपोनेंट इसको हटा नहीं सकता, तो ये भी आपके लिए बेटर है। मेन जो मूव यहाँ पे खेल सकते हैं वो है बिशप ऑन e7, ट्राई टू रिमूव द बिशप एंड ऑल्सो अटैकिंग। If opponent will play rook e1 to pin your bishop, now you can play bishop e6 and you are ready for castle। ठीक है, डायरेक्ट बिशप e6 खेलने का मैंने रीजन बता दिया, डायरेक्ट खेलोगे तो भी आप कैसल नहीं कर पाओगे क्योंकि d1 पे अटैक है। ओके, सो हियर यू कैन प्ले बिशप ऑन e7। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो वीडियो को पॉज करके आराम से स्लो में देखना है और समझना है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है जिसमें जब भी अपोनेंट e5 मूव करता है और हम d5 खेलते हैं, अपोनेंट विल कैप्चर द नाइट, वी कैन कैप्चर बिशप, अपोनेंट विल कैप्चर g7 pawn, then we can play rook g8, and if we'll try to protect the pawn we can go for queen f6। अगर अपोनेंट प्रिपेयर कर कर इसको आ रहा है तो 100% वो पॉन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो यूजलेस मूव है। c इंटू d4 खेलते हैं, वी कैन प्ले बिशप इंटू d4 और नाइट इंटू d4, बिशप इंटू d4, and now here opponent will capture our bishop, then we can play queen into d4, queen will capture the queen, and then knight into d4, c2 पे अटैक, डबल अटैक आ रहा है, so now white can just activate knight a3 and c2 को प्रोटेक्ट कर दिया, knight भी एक्टिव हो गया, रुक into। नेक्स्ट मूव सिंपल है, लाइक बिशप e3 अगर जाता है देन वी कैन टेक बैक द नाइट, बिशप विल गो टू f4, देन वी कैन थिंक अबाउट रुक इनटू g2, बिशप e6 कैसल, इसको भी प्रोटेक्ट करना है हमें, जैसे c6 खेल सकते हैं। तो ये सारे मूव है, दीज आर द साइड लाइन, दिस इज नॉट द मेन लाइन। ओके, मेन लाइन है d5 पे अपोनेंट बिशप b5 खेलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी e5 आया हमने d5 खेला, तो अपोनेंट इज अटैकिंग ऑन अवर नाइट, वी आर अटैकिंग ऑन बिशप। अपोनेंट ने बिशप सेव किया तो हमें भी अपना नाइट सेव करना है और नाइट को e4 पे लेके जाना है। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, बिगनर लेवल पे a6 खेल देते हैं। ठीक है, ये मूव बहुत ही बैड बकवास मूव है। तो सोचो कि जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम इफ पॉन इज अटैकिंग ऑन योर पीस, यू शुड नॉट लाइक फोकस करना चाहिए तुम्हें पहले उस पीस को प्रोटेक्ट करने में। अब मेटिंग थ्रेट हो तभी उसको इग्नोर करो। तो यहाँ पे पॉन ऑलरेडी नाइट पे अटैक कर रहा है, तुम a6 खेल रहे हो तो बिशप इंटू c6 से चेक आ जाएगा, और b इंटू c6, और फिर उसके बाद उसने तुम्हारा नाइट कैप्चर कर लिया, यू आर पीस डाउन। सो जैसे उसने अपना बिशप सेव किया तुम्हें भी अपना नाइट सेव करना है, नाइट को e4 पे खेलना है। ठीक है, व्हाइट का यहाँ पे मेन मूव है सी कैप्चर d4। यहाँ पे भी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बिशप b4 चेक देते हैं क्योंकि बहुत सारी लाइन में चेक है यहाँ पे बिशप b4 पे, तो बिशप b4 चेक देते हैं, तो चेक नहीं देना है यहाँ पे। यहाँ पे हमें बिशप b6 लाना है एंड वी हैव टू क्रिएट प्रेशर ऑन दिस d4 पॉन। ओके, याद रखो इस सेटअप में c इंटू d4 पे बिशप b6 खेलना है, बिशप b4 नहीं खेलना है। ठीक है, अब व्हाइट का टर्न है। व्हाइट के पास मल्टीपल ऑप्शन है खेलने के लिए। व्हाइट कभी कभी बिशप e3 खेलकर इसको प्रोटेक्ट करता है, नाइट c3 खेलता है, कैसल करता है। ठीक है, जो मेन लाइन है उसमें नाइट c3 खेलते हैं और d5 पे अटैक करते हैं। यहाँ पे ब्लैक का मेन मूव है कैसल। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस नाइट इंटू नाइट मूव। नाइट इंटू नाइट इज अ बैड मूव फॉर व्हाइट बिकॉज पॉन कैन कैप्चर द नाइट and this knight is forced to move, then we can capture a free pawn on d4। ठीक है, याद रखो अगर यहाँ पे ये नाइट g1 पे भी जाता है तो भी हमें ये d4 पॉन फ्री में मिल रहा है। ठीक है, नाइट इंटू d4। तो ये लाइक when white played knight on c3 attacking on like d5 और suppose e5 pawn, उसका मेन थ्रेट यहाँ पे ये है। कभी कभी व्हाइट क्या करता है कि जैसे बिशप e3 व्हाइट ने मूव किया तो ब्लैक के पास ऑप्शन है f5 खेलने का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। If white is playing bishop on e3, black can play f5 and white is playing e into f6 एंड पास अगर करता है तो ये जो हमारा क्वीन है देखो d5 को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम फ्री हैं क्वीन इंटू f6 करने के लिए। और अब अगर नाइट c3 पे आता है, ठीक है, वी कैन जस्ट रिमूव द नाइट। नाइट इंटू c3 वी कैन प्ले, b इंटू c3 होगा एंड देन वी कैन प्ले बिशप ऑन g4। सो ब्लैक पीसेस आर सुपर एक्टिव। ओके, बट द पॉइंट इज कि अगर उसने पहले नाइट c3 खेला तो हम f5 नहीं खेल सकते। ठीक है, क्योंकि अब अगर एन पास हुआ वी कांट कैप्चर बाय क्वीन बिकॉज नाइट इज अटैकिंग ऑन d5, तो इसके लिए अभी हम यहाँ पे f5 नहीं खेल पाएंगे।
तो नाइट C3 इनडायरेक्टली जो है F5 को भी स्टॉप करता है, ठीक है। और इसकी टेंशन नहीं लेनी है, नाइट इंटू E4 अगर होगा तो पॉन इंटू हो जाएगा, नाइट पे अटैक होगा, नाइट मूव होगा तो D4 पॉन जाएगा, क्योंकि इस पे 3 अटैक हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए नाइट C3 पे ब्लैक का बेस्ट मूव कैसल है, ठीक है, कैसल कर लेना है यहाँ पे। कैसल करने के बाद व्हाइट यहाँ पे बिशप E3 खेलता है और इस पॉन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। पॉन को प्रोटेक्ट किया व्हाइट ने, सो ब्लैक कैन प्ले बिशप ऑन G4 पिनिंग द नाइट, ओके। नाइट को पिन कर दिया, व्हाइट इज प्लेइंग पॉन ऑन H3, और व्हाइट H3 जब भी खेल रहा है बहुत ही केयरफुल रहना है, यहाँ पे ध्यान देना है, यू शुड नॉट कैप्चर द नाइट, ओके। Because white wants you to capture the knight, then you can play G into F3. Knight is under attack, so you will play knight into knight B into, and here white is getting very strong attack by playing like this position. Black best move is knight E7, then white can play F4. Queen is coming in this line. Bishop can go back to D3 and attack towards this side. Rook can come here, and then white can castle queen side. So my suggestion is whenever white is playing H3, don't capture the knight. Okay, you can play bishop on H5. एक स्टेप पीछे जाओ, ठीक है। यहाँ पे white फिर से क्वीन C2 खेलता है। बहुत से बिगनर प्लेयर ऐसा सोचते हैं, वो आई कैन कैप्चर द नाइट एंड आई कैन स्पॉइल द किंग साइड स्ट्रक्चर। नो, वो तो चाहता है कि आप इसको कैप्चर करिए और ठीक है फिर वो इस साइड में अटैक कर सके, रूक G1, बिशप D3, F4, ठीक है। तो आपको फिर भी कैप्चर नहीं करना है, द बेस्ट मूव इज बिशप ऑन G6। आपको यहाँ पे बिशप G6 खेलना है, ठीक है। दीज आर द मेन लाइन हियर, ओके। आफ्टर बिशप ऑन G6 यू आर रेडी फॉर डिस्कवर्ड अटैक, ओके। यहाँ पे एक छोटा सा टैक्टिक्स है, अगर प्लेयर ने व्हाइट ने बिशप D3 खेल दिया, ठीक है, so you can go for discovered attack by playing knight on B4, attacking on bishop and queen. If queen will go to B1, we can play knight. There are the tactics like we can play knight into C3 or we can also play knight into D3. क्वीन कैप्चर करेगा तो हम ये नाइट मूव करके डिस्कवर अटैक दे देंगे। क्वीन पे अटैक है, क्वीन कहीं पे मूव होता है, वी कैन कैप्चर द रूक, ओके। तो ये एक बेटर ऑप्शन रहता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये भी है कि वी कैन प्ले नाइट इंटू C3 फर्स्ट, क्वीन इज अंडर अटैक, अपोनेंट विल कैप्चर, देन वी कैन प्ले नाइट इंटू D3 चेक, किंग मूव होगा, फिर से हम नाइट इंटू E5 या नाइट इंटू F2 ऐसे प्लान कर सकते हैं। तो जब भी हम बिशप G6 खेलते हैं यहाँ पे, whenever black is playing bishop on G6, व्हाइट का जो यहाँ बेस्ट मूव है वो है क्वीन B3। क्वीन इज अटैकिंग ऑन पॉन, नाइट इज ऑल्सो अटैकिंग ऑन पॉन। ब्लैक को यहाँ पे E7 खेलना है और इसको प्रोटेक्ट करना है, एंड रेडी फॉर पॉन ऑन C6, वेरी नाइस स्ट्रक्चर, देन नाइट कैन जंप टू F5। सो हियर व्हाइट कैन कैसल, यहाँ पे व्हाइट कैसल करता है, अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो कैसल करता है, देन वी कैन प्ले C6, और यहाँ पे व्हाइट का मेन मूव है बिशप D3। व्हाइट कैन ऑल्सो प्ले बिशप E2, ओके। तो यहाँ पे जब व्हाइट बिशप D3 खेलता है, नाउ वी कैन प्ले नाइट ऑन F5, दिस इज ऑप्शन, नाइट ऑन D2, नाइट इंटू C3। तो यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली कोई ये बोल नहीं सकता कि यही करेक्ट है, आप अपना प्लान करिए, प्रिपेयर करिए, ठीक है, और अपना गेम खेलिए। तो यहाँ पे जिसने प्लान किया कि नाइट D2 का एक प्लस पॉइंट ये है कि जब भी नाइट D2 होगा, नाइट D2 इज लाइक गिविंग द नाइट एंड गेटिंग अ बिशप पेयर। अब जैसे नाइट D2 पे देखो डबल अटैक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि व्हाइट फोर्स है नाइट को कैप्चर करने के लिए, तो व्हाइट ने अगर बिशप से नाइट को कैप्चर किया, वी आर गेटिंग अ बिशप, ठीक है। तो रूक E1 पे आएगा, हम अपना बिशप वापस लेकर आ जाएंगे, ठीक है। एक ऑप्शन ये रहता है, और या तो हम यहाँ पे नाइट F5, क्योंकि बिशप पे तो अटैक है नहीं, तो हम नाइट F5 भी लेकर आ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है कि अगर नाइट इंटू D2 हो गया, बिशप इंटू बिशप, फिर से रूक E1 आ रहा है, ठीक है, रूक F1, देन ऑल्सो वी कैन टेक बैक द बिशप ऑन G6, सो वी हैव अ टू बिशप बिशप पेयर। तो नाइट D2 में यही ऑप्शन है कि बिशप D3, नाइट D2 हम खेल के बिशप पेयर ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि एक बार वेस्ली सो एंड मैग्नस कार्लसन का भी गेम है, जिसमें शायद ब्लैक से मैग्नस कार्लसन थे जिन्होंने नाइट F5 यहाँ पे खेला, ठीक है, एंड व्हाइट प्लेड क्वीन ऑन C2, ठीक है। वेस्ली सो ने क्वीन C2 खेला, एंड देन नाइट इंटू E3, F इंटू E3, ठीक है, और नाइट G3, ऐसे गेम हुआ है जिसमें बिशप इंटू G6, H इंटू G6 ऐसा हुआ है। दिस इज अ मिडिल गेम। अब ओपनिंग का पार्ट फिनिश हो गया, ये पोजीशन दोनों लोगों के लिए बेटर है, ठीक है, दोनों लोग इसको खेल सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे रहता है, लेकिन कभी कभी क्या है कि बिशप ऑन G6 एंड व्हाइट प्लेट, सपोज व्हाइट का जो मेन मूव यहाँ पे क्वीन B3 है, ठीक है, क्वीन B3 व्हाइट का मेन मूव है, और उसके बाद नाइट यहाँ पे कैसल C6, बिशप D3, नाइट D2, बिशप इंटू D2, बिशप इंटू रूक E1,
और कभी कभी यहाँ पे नाइट इंटू डी टू भी हो सकता है, तो बिशप इंटू डी थ्री, रूक E1 एंड देन बिशप ऑन G6 बैक। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे मेन लाइन होता है। आफ्टर दिस सेटअप, इतना होने के बाद जो व्हाइट का प्लान है, व्हाइट नाइट A4 खेलता है, बिशप पे अटैक करता है। ठीक है, सो बिशप पे अटैक कर रहा है। नाउ व्हाट वी कैन डू, लाइक अगर हमें बिशप सेफ नहीं कर सकते क्योंकि ये B7 पॉन जा रहा है, दिस पॉन इज हैंगिंग, सो वी कैन प्ले हियर नाइट ऑन F5। और अगर अपोनेंट ने हमारा बिशप कैप्चर किया, सो वी कैन प्ले A इंटू B6, ब्लैक इज फाइन हियर। और फिर यहाँ पे व्हाइट F4 खेलकर अपना गेम कंटिन्यू करता है। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि जब भी ये बिशप D3 जा रहा है, आप नाइट D2 खेलिए ही ना, आप नाइट F5 खेलिए, जैसा कि मैग्नस कार्लसन वाले गेम में था। व्हाइट क्वीन C2 खेल रहा है, ठीक है। सो नाउ वी कैन गो फॉर नाइट इंटू C3, क्योंकि नाइट बहुत बार ऐसा हो रहा है ना कि जैसे नाइट A5 पे आ रहा है, तो ये एक मैंने वेरिएशन यहाँ पे दिखाया, नाइट D2, बिशप इंटू D2, ठीक है, बिशप इंटू D3, रूक F E1। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नाइट F5 खेल रहे हैं। अभी नाइट A4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट A4 पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर नाइट A4 हुआ, वी कैन प्ले बिशप E4, नाइट इंटू बिशप पॉन इंटू बिशप इज एब्सोल्युटली फाइन हियर। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। G4 से अटैक वटैक अगर आता है यहाँ पे, तो नाइट H4 जाएगा, क्वीन एंटर कर सकता है अगर नाइट ने कैप्चर किया। ये मिडिल गेम का पार्ट है, दिस इज नॉट ओपनिंग नाउ। सो यहाँ तक से तो आपका थियरी है, ये आपको रेडी रखना है। हाँ, कभी कभी व्हाइट बिशप E2 भी खेलता है, ठीक है, टू अवॉइड दिस एक्सचेंज। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि नाइट F5 खेल सकते हैं फिर से। व्हाइट फिर से वही नाइट A4 को लेके कंटिन्यू करेगा, एंड देन वी कैन प्ले F6, ट्राई टू ब्रेक द पॉन। E इंटू अगर F6 हो रहा है, वी कैन प्ले बिशप ऑन C7, यहाँ पे खेला जाता है। देखना यहाँ पे ट्रिक है कि जब भी अगर क्वीन इंटू B7 होगा, नाउ वी हैव अ वेरी स्ट्रांग मूव, रूक इंटू F6। ओके, तो ये एक दो गेम में शायद ट्रैप सेट हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे बिशप E2 गया, ब्लैक प्ले नाइट F5, व्हाइट ने फिर से वही थ्योरी यूज की, नाइट A4 अटैकिंग ऑन बिशप। यहाँ पे ब्लैक ने क्या किया, F6 खेल दिया। व्हाइट कैन कैप्चर द B6, then we can play queen into B6 if you want to exchange the queen. Okay, otherwise you can play A into B6, ठीक है, and then opponent can capture this queen into F6, continue the game, let him capture the pawn, then knight into E3, F into E3, okay, then knight G3, bishop is hanging, ठीक है। तो बिशप के लिए मेरे ख्याल से रुक भी जा रहा है, तो रुक F1, बिशप को सेव किया, देन वी कैन प्ले रुक F7 टू प्रोटेक्ट द पॉन, वी आर रेडी टू प्ले रुक F1, लाइक दैट वी कैन प्ले, लाइक नाइट इनटू E2 इज आल्सो थ्रेट। अब इसमें ये जो मूव मैंने स्किप किया कि यहाँ पे पॉन कैप्चर अगर पॉन होता है इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग द बिशप, सो हियर वी कैन प्ले बिशप ऑन, सॉरी कुछ वेरिएशन गड़बड़ होगा, F6, pawn capture pawn, एंड देन हियर वी कैन प्ले बिशप C7। हाँ, यहाँ पे हम बिशप C7 खेल सकते हैं। तो एक्चुअल में ये है कि अगर अपोनेंट ने B7 पॉन कैप्चर किया, ये मिस्टेक है, बिकॉज रुक इनटू F6 एंड नाउ वी आर रेडी टू, आई थिंक विल ट्राई टू गेट द क्वीन हियर। तो अगर व्हाइट ने ट्राई किया कि चलो क्वीन को वापस ले जाते हैं, देन वी कैन प्ले बिशप ऑन H5, और मेन फोकस इज दिस किंग साइड। व्हाइट कैन प्ले लाइक नाइट ऑन C3, ट्राई टू इन्वॉल्व नाइट C5, एक्सचेंज करना है, नाइट C3 खेलना। देन यू कैन प्ले बिशप इंटू F3, बिशप इंटू क्वीन D6, H2 पे अटैक आएगा। दूसरा ऑप्शन अगर समझो व्हाइट को ऑलरेडी पता चल गया, उसने इस तरीके के मूव खेले G4 एंड ऑल, इट्स नॉट वर्किंग, रूक G6, किंग को अगर मूव करने का ट्राई किया, बिशप इंटू, पॉन इंटू, रूक इंटू, क्वीन इज एंटरिंग, नाइट इज देयर, बिशप इज देयर, सो इट्स वेरी रिस्की फॉर व्हाइट। तो ये ओवरऑल सेटअप है। फिर से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तक से देखो पोजीशन कॉमन है। अगर व्हाइट C3 मूव खेलता है, ब्लैक कैन प्ले नाइट F6, इफ व्हाइट इज प्लेइंग D4 वी कैन जस्ट कैप्चर द पॉन, E5 then we can play D5. So we already checked E into F6 how to play this, okay, and main line is bishop on B5, then we can play knight E4, white can capture, then we can play bishop on B6 to create pressure on D4। यहाँ पे नाइट C3 होगा तो हम कैसल करेंगे, कैसल मस्ट है यहाँ, तो नाइट फ्री हो जाएगा। अभी कैसल नहीं करोगे, पहले ही बिशप G4 खेलोगे, ये भी पॉसिबल है, यू कैन चेंज द मूव ऑर्डर। आई सजेस्ट यू टू फर्स्ट कैसल, देन नाइट इज फ्री टू मूव। नाउ हियर बिशप ऑन E3, द थिंग इज लाइक अगर आप पहले कैसल करेंगे तो हो सकता है कि व्हाइट H3 खेलकर बिशप G4 को स्टॉप कर दे, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नाउ यू कैन जस्ट प्ले योर गेम, ओके।
We can also think about bishop a5 to attack on the knight and then f6. मोस्टली f6 बहुत कॉमन रहता है खेलना, क्योंकि f6 खेलने से हम कैप्चर कर कर फिर रुक फाइल ओपन कर देते हैं अटैक करने के लिए। तो मेन लाइन के अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे हम कैसल कर रहे हैं और अपोनेंट खेल रहा है बिशप e3 जो कि मेन लाइन है, या तो व्हाइट कैसल भी कर सकता है। फर्स्ट ओनली व्हाइट कैन कैसल, देन आवर मूव इज सेम बिशप g4, फिर व्हाइट बिशप e3 खेल रहा है, ठीक है, देन वी कैन गो फॉर f6। लेकिन अगर यहाँ पे व्हाइट बिशप e3 खेल रहा है, वी आर प्लेइंग बिशप g4, व्हाइट इज प्लेइंग h3, वी आर प्लेइंग बिशप ऑन h5। ओके, दिस इज द लाइन वेयर व्हाइट इज प्लेइंग क्वीन c2, वी कैन प्ले बिशप g6, ठीक है। व्हाइट कैन प्ले क्वीन b3 अटैकिंग ऑन d5, नाइट e7 टू प्रोटेक्ट। यहाँ पे व्हाइट कैसल कर रहा है तो हम c6 खेल रहे हैं, व्हाइट बिशप d3 खेल रहा है तो हम नाइट d2 खेल रहे हैं। ये एक लाइन, ठीक है। ये मेन लाइन। लेकिन टूर्नामेंट में याद रखना है हमें कि जैसे ही हम कैसल करते हैं, बहुत बार ऐसा है कि व्हाइट भी कैसल कर लेगा। व्हाइट कैन ऑल्सो कैसल एंड अलाउ यू टू पिन द नाइट। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि पहले कैसल नहीं करते, बिशप g4 करके पहले पिन करते। ये सेम मूव ऑर्डर चेंज होगा, बिशप e3 आएगा, फिर कैसल होगा, ठीक है, और फिर h3 आएगा। दिस इज द सेम थिंग, फर्स्ट कैसल बिशप e3 बिशप g4 h3, और फर्स्ट बिशप g4 बिशप e3 कैसल देन h3। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जब आप कैसल कर रहे हैं, व्हाइट ऑल्सो कैसल एंड नाउ यू प्लेड बिशप g4, देन ब्लैक इज प्लेइंग व्हाइट इज प्लेइंग बिशप e3 टू प्रोटेक्ट द d4 pawn। हियर योर स्ट्रेटेजी इज लाइक डिफरेंट, बिकॉज जो हमने मेन लाइन देखा था उसमें व्हाइट कैसल बहुत लेट करता है, जिसमें h3 क्वीन c2 ये सब होने के बाद होता है। तो इस वाले वेरिएशन में हम इमीडिएट f6 खेलते हैं, ठीक है। अगर उसने कैप्चर कर लिया f6 को, सो नाउ यू कैन सी d5 इज स्टिल हैंगिंग, क्वीन इज प्रोटेक्टिंग। तो यहाँ पे हम नाइट इंटू f6 करेंगे, फिर ये व्हाइट वापस बिशप e2 पे आता है, बिशप जो है e2 पे आता है, देन वी कैन गो फॉर क्वीन d6, रूक इन सेंटर, लाइक हियर बिशप ऑन e2, देन वी कैन गो फॉर क्वीन d6। व्हाइट कैन प्लान समथिंग लाइक इफ व्हाइट इज प्लेइंग h3 टू अटैक ऑन बिशप, बिशप h5, ठीक है। अभी वो क्वीन c2 लेकर आएगा, दिस इज रियली बैड, क्योंकि बिशप g6 खेल सकते हैं। अभी तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, रुक के e8 भी एक ऑप्शन है। तो ये बहुत ही बेस्ट पोजीशन है ब्लैक से खेलने के लिए। ये हमारा एक सेटअप है, इसको आपको अगर प्रैक्टिस करना है, आप इस पे बहुत सारे गेम भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सी वेरिएशन चेंज होते रहते हैं। जैसे ये बिशप b6 आया ना, तो जैसे मैंने बोला नाइट c3 खेला गया है, कैसल हो रहा है, व्हाइट कैन प्ले फर्स्ट ओनली h3 टू स्टॉप बिशप g4। तो फिर यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा क्या खेलना है। तो यहाँ पे अगर आप खेल रहे हैं f6 मूव, ठीक है, तो व्हाइट कैसल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन यू कैन प्ले f into e5, white can play, you know, first remove, white can remove your knight b into c6, and then white can remove this pawn into, and then white can play knight into e5। तो यहाँ पे हम queen into d4 करते हैं, ठीक है। क्वीन b3 से चेक आया, ठीक, नाइट f7 आ रहा है, देखो किंग h8 गलती से मत खेल देना, क्वीन d5, ओके, देन नाइट into c6, we can't capture the knight, then queen into b3, a into b3, bishop b7, two bishop, rook, टू रूक एंड वन बिशप नाइट एंड टू रूक, ऐसे गेम होगा। तो ये सारी चीजें भी केयरफुल रखना है इसके लिए, ठीक है। तो अगर आप पहले भी अगर पिन करना चाहते हैं तो पहले पिन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप कैसल कर रहे हैं, व्हाइट के पास ऑप्शन है h3 खेलकर स्टॉप करने का। अगर h3 खेल दिया तो याद रखो वेरिएशन आपका f6 से कंटिन्यू कर सकते हो। और भी गेम है जिसमें नियर अबाउट मोर देन 20 गेम डेटाबेस में, जिसमें बिशप e5 खेला गया है, नाइट को पिन किया गया है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अभी व्हाइट अगर कैसल करेगा, वी कैन प्ले बिशप इंटू c3, बी इंटू c3, एंड नाउ वी कैन गो फॉर नाइट इंटू c3। तो यहाँ पे व्हाइट फोर्स हो जाता है कि d2 खेले, व्हाइट कैसल अभी नहीं कर सकता। तो हम नाइट इंटू d2 करके बिशप हटाएंगे, क्वीन इंटू d2, एंड देन वी कैन प्ले नाइट e7। जो हमारा बिशप इंटू c6 से स्ट्रक्चर खराब हो रहा है वो नहीं होगा, कैसल c6, बिशप d3, एंड देन वी कैन गो फॉर f6। तो अभी क्या है कि f6 पे अगर पॉन इंटू हुआ, वी कैन गो फॉर रुक इंटू f6, वी आर रेडी टू प्ले नाइट हियर टू कंट्रोल e5 स्क्वायर, बिशप भी एक्टिव है, क्वीन भी एक्टिव है, ठीक है, वी कैन प्ले बिशप c7 आल्सो टू एक्टिवेट। दिस इज ओवरऑल सेटअप एंड दिस इज द फर्स्ट वेरिएशन ऑफ दिस गाइको पियानो। नेक्स्ट में हम लोग जो है दूसरा लाइन देखेंगे, जिसमें नेक्स्ट में c इंटू d4 बिशप b4 चेक होता है। थैंक यू।